Is it fine now? Please respond that you are able to listen my voice clearly. Yes, ma'am, I am able to listen you. Okay, okay, thank you so much. Is Sadid here? Is Sadid here or not? No, I don't think so. He is here. No, ma'am, he is not. Farooq, just do me a favor that you should take the attendance 3 times during the session. ठीक है? Inshallah will begin at 12:15 और जो formal lecture है तो 12:15 के बाद you have to take 3 screenshots of the attendance. ठीक है? The names of the students should be visible that who are taking the class. ठीक है? Okay, ma'am. All right, thank you so much. And let's begin with the formal lecture. Um, okay, I hope that, oh, sorry. I hope that this is visible to you, the types of text. Yes, ma'am, it's visible. Okay, okay. I'm just skimming the all the slides to you that because you know we have covered this topic if you remember. Correct me if I'm wrong. We did it or not? Narrative, persuasive, and descriptive. Did we cover it or not, please? Ma'am, don't know exactly. याद नहीं है बाकी कोई बताएगा मुझे उनसा did you said that we have covered it अच्छा आप लोग बोल सकते हैं प्लीज अगर आप बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा no it's not covered yes I was remembering the मिस same नहीं हुआ। नहीं हुआ right asfa okay let's start with the types of text please mute your mic Ahsan. All right. Let's begin with the formal lecture here. Okay, the types of text. When we talk about the types of text, so it means that under the academic or the content writing, we have different types of approaches to write on, right? So there could be multiple possibilities when we compose something. So it means that whether it tends to give some kind of message, some kind of information to the readers, or probably it is written to give some kind of sharing, like it is written to share some of the past experiences which was held with the particular person, and probably it could also be written to persuade someone, to convince someone. So there could be multiple purpose of writing. So on the basis of those purposes we Sadi, yes. We compose different types of text. We categorizes the text types. Okay. So let's suppose first of all when a question come in front of you, so you first of all need to analyze that what type of approach you need to take before in the writing. Are you going to describe something? Are you going to share some kind of story, or are you going to share some kind of experience which was held in your life, or are you going to give some kind of authentic detail about something? So on the basis of these types of ideas we have composed different types of text. Okay, let's move ahead. This is the first. Oh, okay.
Yes, the first one is the narrative. Narrative. The word narrative is taken from the word narrator, narrate, narration. What could it mean? Can anybody respond me? What could the narrative be like? Yes. To explain. To explain, obviously, देखिए जो भी text है, so obviously we need to explain. But how can you differentiate the narrative writing? Let's suppose a narrative say just you can resemble the word narrative with that of the narrator, narration, narratives, and these types of things. So क्या होगा जो उसका नाम narrative रखा है? Any idea? Please share. देखिए जैसे से क्लास में बोलते हैं ना, you can speak here in the mics. मजा आता है जब हम बात कर रहे होते हैं ना. Any idea? No, miss. कोई आइडिया ही नहीं है. अच्छा जो भी ज़रूरी नहीं है obviously we don't know the real things because we are studying. तो अगर कुछ भी आपके दिमाग में आए तो यू कैन स्पीक. अभी मैंने इससे पहले जो क्लास ली दैट वाज सो मच इंटरेक्टिव. बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगता है ऐसी क्लास में जिसमें जो है ना वो स्टूडेंट्स खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे हो. तो प्लीज़ try to respond. I am just admitting few students who are joining in. That's why I am stopping. Yes. Okay. So narrative means narrative मतलब क्या है कि somebody is conveying something. ठीक है. It is actually based on a story kind of things. जैसे इसमें definition में लिखा हुआ है to tell a story usually about something that happened to you means to the writer in such a way that the audience, not he, the audience learns a lesson or gains insight. What does it mean? That whatever you write, it could be like sharing some kind of past event to the audience, some kind of past event to the readers. कोई ऐसा memorable event है, कोई बहुत ही कोई saddest event रहा, कोई जो है वो ऐसा कोई journey था जो बहुत ही memorable है. तो likewise these kinds of things, sharing something which happened to you. अच्छा, it's not about the real event. जरूरी नहीं है कि जो real event है वो हम सिर्फ उसी को बताएं. You must have studied some kinds of stories in which the writer says कि he is the part of that story. जैसे वो है कि भाई रोबिन्सन क्रूसो अगर किसी ने पढ़ा हो अपने बचपन में, तो रोबिन्सन क्रूसो इज अ नॉवल. उस नॉवल के अंदर the writer shows himself as the part of that story. He took that journey. He when he was a child, his father was like this and that. However it was not the real story of the writer. लेकिन उसने जो लिखा है उसको आई और मी करके लिखा है. ठीक है. It seems like that it has happened to him. However, it's a fictional story. Narrative writing tells a story or the part of story. It is not a necessity that the whole story or the whole description of the life is represented through the narrative text. It could be, just an event. जैसे हमारे पास ऐसे आते हैं, इसके अंदर लिखा होता है write on, a memorable day of your life, a cricket match you have watched. So it is based on the narrative text because you are sharing your experience in the writing forms. ठीक है. So this is the narrative approach of writing. जैसे अगर किसी और का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो तो वो नैरेटिव होती है? नहीं, अगर हम किसी और का शेयर कर रहे होंगे तो वो तो उसमें तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूजुअली. अब आप ये कहेंगे कि भाई यूजुअली लिखा है ना, तो 100% तो नहीं है ऐसा. लेकिन यहाँ पर मैं अब अगर आपसे कहूँ कि 99% नेगेटिव टेक्स्ट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि हो लाजमी आपका हो, आप वो फिक्शनल तौर पे भी. अगर आप किसी और का बता रहे हैं तो इट्स नॉट हाँ, अगर आप ये बता रहे हैं कि मैंने ये देखा कि मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है, तो ये नैरेटिव कहलाएगा. लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि सही से मतलब उसमें अगर मी टोन आ रही है तो इट कुड बी अ नैरेटिव. लेकिन इसके अंदर देयर आर सम पीपल हु से कि एनी स्टोरी,
any story could be termed as a narrative text. ठीक है, कोई भी स्टोरी है जिसके अंदर आप हैं या नहीं है, लेकिन when you write something, we are focusing more on not on the story writing, we are focusing on the essay writing. So when you are asked to share your experience कि भाई कोई सक्सेसफुल डे आपने बताना है, कोई मैंने पिकनिक ऑन द बीच, या फिर जो भी जिसके अंदर आप अपना पार्ट शो कर रहे हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज द नैरेटिव राइटिंग. ठीक है. Okay, descriptive text. When you talk about the descriptive text, what do you understand by this word, descriptive or description? मिस किसी चीज के बारे में बताते हैं ना तो डिस्क्राइब कर. Right, good. Meaning obviously when you describe, when you illustrate about something, okay, when you give the details about something, right? So it means that to describe to describe a person, object, or event so vividly. Vividly means clear, that the reader feels like he or she could reach out and touch it. Sometimes होता है ना कि डिस्क्रिप्शन इतना कोई हसीन दिया हुआ होता है कि you can easily imagine the things. You know, it seems like that you are there in that scenario. So it is the skill of writing that the writer can choose that type of words which can directly affect the mentality of the reader. अब जैसे मैं कहूँ कि मैंने हुंजा वैली के बारे में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पढ़ी, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट था. इट वाज it was meant to what can you say that attract the people or the travelers who want to travel that area. और वो डिस्क्रिप्शन इतना कोई खूबसूरत, इतनी कोई वर्ड चॉइस इतनी अच्छी थी कि आई फील लाइक दैट आई एम देयर एंड आई एम एक्सप्लोरिंग दैट प्लेस. बिकॉज इस तरह से लेट सपोज जापानीज, द लाइफ ऑफ जापानीज, और वो डिस्क्रिप्शन इतना कोई खूबसूरत लिखा हुआ हो, इतनी choice of word is very impacts a lot on writing. So if the writer has the ability to describe a thing in a way that reader can get attract towards that particular area, can feel the idea which the writer wants to convey, so it means that the writing is good. So descriptive means to describe a person, an object, or event. Achha, descriptive writing vividly portrays a person, place, a thing in such a way that the reader can visualize the topic and enter into the writer's experience. So if I ask you to give any example of the descriptive text you must have read before, so what would it be? Any example? जो कभी पिछले कभी स्कूल लाइफ में कोई टेक्स्ट ऐसा पढ़ा हो जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट हो? मैम ऐसा ज़हन में तो नहीं आ रहा. हाँ, ओके, लेट्स सपोज ऐसे वो था ना, सॉरी, कायदे आजम रेजिडेंसी, लेट्स सपोज मोहनजोदड़ो, लेट्स सपोज मैं अब आपको बताऊंगी तो आप कहेंगे कि हाँ ऐसा ही है. या अगर हम शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई की डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट थे, ठीक है, उनकी कैरेक्टर के बारे में, या हमारा पूरा जो इवेंट है पाकिस्तान इंडिपेंडेंस का, वी हैवंट बीन देयर, वी हैवंट विटनेस दैट इवेंट, बट थ्रू द हिस्ट्री, थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट हिस्ट्री, we felt that we were the part of that particular movement. अब आप पढ़ें तो you can visualize, आपके दिमाग में एक खाका बनता रहता है. अगर मैं जैसे लेट्स सपोज मैंने आप लोगों को शायद इफ यू रिमेंबर or probably I don't remember exactly that whether I have discussed the thing with you or not कि हम लूसी ग्रे पढ़ रहे हैं. Let's suppose लूसी ग्रे पढ़ रहे हैं and there comes an imagination of the लूसी कि लूसी किस तरह की होगी, बड़ी प्यारी सी छोटी 2 चुटियाँ बनी हुई हैं उसकी, वो घूमती फिरती जा रही है और वैली है, ग्रीन आगे पीछे एरियाज है. अब मैं ये बात बोल भी रही हूँ ना, अगर आप किसी ने नहीं भी पढ़ी तो आपके दिमाग में वो इमेजिनेशन बनता हुआ जा रहा है. लेट्स सपोज आई एम टेकिंग दिस क्लास, तो आपके दिमाग में मेरा भी इमेज बनता हुआ आ रहा होगा, ठीक है ना, कि मतलब हाउ डू आई स्पीक, व्हाट इज दीज आर द थिंग्स. सो वी रिलेट द वर्ड्स विद द आइडियाज.
और डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट की जो एफिशिएंसी होती है वो ये होती है कि हाउ यू आर चूजिंग द वर्ड्स टू elevate the imagery of the reader, of the the audience. तो हम विजुलाइज करते हैं चीज़ों को, और डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट के अंदर हमारे कोर्स बुक के अंदर डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट भरा पड़ा है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जिस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब टू डिस्क्राइब अ पर्सन, व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्शन और डिस्क्राइबिंग, it means that there isn't any kind of reflection of the person, वो ऐसे ही as it is बताएगा। भाई let's suppose मैं बताऊं कि like current situation of COVID-19, let's suppose, अब I will be describing the whole situation of the country, economic situation बताऊंगी, ठीक है, जो मेडिकल सिचुएशन है वो बताऊंगी, प्रोग्रेस बताऊंगी, ये सारी चीजें बता, एजुकेशनल सेक्टर में इम्पैक्ट बताऊंगी। अब दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट बिकॉज आई एम डिस्क्राइबिंग द थिंग्स एज इट इज विदाउट एनी बायसनेस। आई एम नॉट गिविंग माय ओपिनियन इन इट दैट it should be done like this, it should be like this, and no, I just need to give the information as it is, which I am experiencing, which I have gathered regarding that particular topic, okay? So that the other person can get the idea that this is the description of the thing. But yes, choice of words matters. अब let's suppose बड़ी बुरी हालात है COVID-19 की वजह से, so I can better explain the scenario, the worst scenario with the appropriate word choice, ठीक है, तो it matters a lot। आगे बढ़ते हैं। If anybody has any question, you can ask me in between. Okay, now the persuasive text. What is the persuasive text? The persuasive text, the word persuasive is taken from the word persuasion and to persuade. What does it mean? To persuade. किसी को कायल करना अपनी बात पे। Very good. Obviously, the means to convince someone, ठीक है, to make your ideas, to deliver your ideas in a way that the other get your point and that the other agree with your point, ठीक है। The persuasive text किस तरह का होता है कि जिसके अंदर you are convincing someone. So can you example any kind of text you have seen? Application. Okay, application में देखिए, application is not that text in which you are conveying your thoughts, ठीक है। application तो ये होता है कि you apply for something whether it will be accepted or not। हमारे एप्लीकेशन का अलग सा कॉन्सेप्ट हो गया कि हमारे बच्चे पता है क्या करते हैं, छुट्टी तो पहले कर लेते हैं, एप्लीकेशन 2 दिन के बाद आती है। मिस ये एप्लीकेशन दी, हम परसों एब्सेंट जो होते उसकी, मतलब व्हाट इज दिस। एप्लीकेशन का मतलब होता है टू अप्लाई मींस when you apply something and then it will be accepted, then you can do the certain things, you can do the asked things। हमारे क्या होता है वो बाद में आता है, एप्लीकेशन का पर्चा बाद में आ रहा होता है क्योंकि वो काम पहले से कर लिया, क्योंकि वो एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन के वाले से बात करें तो इट्स नॉट द परसुएसिव टेक्स्ट बिकॉज यू आर नॉट परसुएडिंग समवन, ठीक है। आप उसके अंदर तो आप सिंपल सा एक क्या कहते हैं, आप परमिशन ले रहे होते हैं किसी चीज में। परसुएसिव का मतलब होता है कि यू हैव द आइडिया इन योर माइंड एंड यू जस्ट वांट द अदर पर्सन टू अग्री विद योर ओपिनियन। एनी काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ दिस अप्रोच? मिस परसुएसिव राइटिंग होती है ना, फॉर एग्जांपल मिस अगर एक प्लॉट है तो मिस अगर हमने कोई इश्तिहार दिया तो मिस हम वो जो रीडर होगा वो परसुएट मतलब कायल होना चाहिए कि वो जो है चीज ले ले। वेरी गुड। सो इन मार्केटिंग वी कैन हैव दिस अप्रोच। गुड। वो होता है ना, वो जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल कि वो सेल लग रही होती है, या जैसे अभी ब्लैक फ्राइडे था, ये ब्लेस्ड फ्राइडे वट एवर यू कैन कॉल, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो सेल के बाद 3 जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहे होते हैं जस्ट टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, ठीक है। सिमिलरली
when you see the brochures of different organizations, different companies, उसमें होता क्या है, अच्छा ये हमारी जो मीटिंग जैसे ही एंड होगी ना, तो यू हैव टू ज्वाइन इन विद द सेम लिंक, ठीक है, ये रिकरिंग मीटिंग मैंने लगाई है, तो यू वोंट बी यू नो हैव एनी ट्रबल इन हैविंग द लिंक, अनदर लिंक, ठीक है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो जो हमारे पास अप्रोच होती है उसके अंदर क्या होता है कि आप ब्रोशर में देखेंगे, उसके अंदर क्या होगा, बस तारीफ है, तारीफ है, तारीफ है, हमारा इंस्टीट्यूशन ऐसा या हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, वन मस्ट ज्वाइन इट। या फिर आप कोई जैसे अब लगूना था, या लगूना की अगर बात करें तो अब देखा, अगर आप इफ़ यू जस्ट कंसीडर द एडवर्टाइजमेंट देयर, तो उसके अंदर क्या था, अप्रोच क्या, परसुएसिव अप्रोच है, दैट दे जस्ट वांट टू अट्रैक्ट द बायर्स। और उसके अंदर दे डोंट कंपेयर द थिंग्स विद द अदर वन, दे से दैट वट एवर दे आर प्रोवाइडिंग इज द बेस्ट वन, ठीक है, दे डोंट कंपेयर देमसेल्फ विद द अदर। द टोन इज इमोशनली चार्ज एंड मोर अग्रेसिव, मतलब दे से दैट वट एवर दे आर सेइंग is the right thing, whatever they are claiming is the right thing, and they are they just want to they just want to get their buyers in any way। अब वो चाहे उनका नुकसान हो, दे डोंट थिंक। अब आप लेट्स सपोज अगर आप जैसे वो OLX वगैरह पे देखते हैं, या जो दराज वगैरह है, या जिस तरह से हमारी सोशल मीडिया की जो स्लाइड्स हैं जहाँ पे सेलिंग और बाइंग चल रही होती है, तो उसके अंदर परसुएसिव टेक्स्ट होता है, यानी कि अगर पूरा डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ होगा ना, तो वो इतना कोई खूबसूरती से लिखेंगे कि जो उनके प्रोडक्ट है दैट इज द बेस्ट वन, और वो कभी भी अपने प्रोडक्ट को दूसरे से कंपेयर नहीं करेंगे। लेट्स सपोज कैनन और जो है वो निकॉन का जो कैमरा है निकॉन का, तो वो उसकी कंपैरिजन अगर लेट्स सपोज एक बंदा जो यूजर है वो तो कर सकता है, लेकिन अगर कोई सेलर होगा उसका, तो वो सिर्फ अपने ही कैमरे के हवाले से बात करेगा। ही डजंट कंपेयर कि भाई इसके अंदर ये वाला फीचर नहीं है जो दूसरे वाले में है। तो दिस इज कॉल्ड द परसुएसिव टेक्स्ट। अब हम इसको राइटिंग में कैसे लेकर आते हैं, लेट्स सपोज यू आर कंपोजिंग एन एसे, तो व्हाट शुड यू डू, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अब लेट्स सपोज हमारी क्लास में दो बंदों की बहस हो गई किसी बात पे। अब आप कहते हैं, अक्सर आप देखा होगा अतराफ में, आपने देखा होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। one is that type of people who always want to argue, they say that whatever they are saying is right, और अगर कोई इनकी बात नहीं मानता ना, तो या तो वो अग्रेसिव हो जाते हैं या अपनी टोन को हाई कर लेते हैं, they don't want to listen the others opinion। Same is the case with the other type of the people, sorry, the opposite case lie with the other type of people, in which the people accept the counter claim calmly, they just want to listen the other opinions in a silent way। आपने देखा होगा जो थोड़े से बड़े लोग होते हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, उनको हम ये समझते हैं ना कि वो हमेशा दूसरे लोगों की खामोश होकर पहले बात सुनते हैं एंड देन दे रिप्रेजेंट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर वो कहते हैं कि ठीक है आप ये बात मान रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ दिस आइडिया बिकॉज आई हैव दिस रीजन, ठीक है। तो दिस इज नॉट द परसुएसिव अप्रोच। परसुएसिव में क्या है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, चाहे सामने वाला कुछ भी कह रहा हो, हम उसको बिल्कुल निग्लेक्ट करते हैं, वी जस्ट डोंट वांट टू इवन लिसन दैट पॉइंट। ये टेक्स्ट में भी यही चीज होती है, लिख रहे हैं तो हम बस अपनी 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 ही बातें करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर वर्ड चॉइस भी थोड़ी डिफरेंट होती है, उसके अंदर ये नहीं होती कि अच्छा हम क्या करते हैं, फैक्चुअल चीजें नहीं देते, हम कहते हैं आई थिंक दिस, माई ओपिनियन दिस, आई वॉन्ट दिस, बस ये आई वाली चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है इन परसुएसिव टेक्स्ट। मतलब मैम इसमें रॉन्ग भी हो सकता है वो बंदा। बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अंदर क्योंकि हम वी आर नॉट आर्ग्यूइंग विद द क्लेम्स, विद द एविडेंसेस, विद द फैक्ट्स, विद द स्टैटिस्टिक्स, हम ये चीज रेफरेंस दे ही नहीं रहे, हम तो ये तो कह रहे हैं कि बस जो हम आ रहा है ना वो ठीक है। अब वही वाली बात है ना, मैं इसके अंदर एग्जाम्पल देती हूँ, टाइगर बिस्किट वाला, और वो जो 2 रुपए वाला बिस्किट है तो वो 2 रुपए वाला बिस्किट, लेकिन वो क्या है, वो है ऐसी, उसमें दुनिया भर की गजाइयत है। हाँ लेकिन कैसा पॉसिबल है वो, मतलब 2 रुपए का तो नहीं है ऑब्वियसली वो, लेकिन हाउ कुड इट बी पॉसिबल दैट a 10 rupees biscuit can have minerals and vitamins and फला एंड का पूरी लॉन्ग लिस्ट आ गई उसकी, ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल इसी तरह से वो एक शाही मेवा का ऐड आता था कि वो उसमें इतनी जान आ गई बंदी
तो मतलब it is, you know, yes, yes. मिस ये आप जो समझा रही हैं पर्सुएटिव टेक्स्ट, ये समझ में तो आ रहा है, लेकिन वो टेक्स्ट के फॉर्म में इमेजिनेशन में कैसे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, इसकी हम जब मैं तो इसकी एक आपको एग्जांपल भी दूंगी, बिल्कुल दूंगी पर्सुएटिव टेक्स्ट की। म्यूट योर माइक प्लीज। अच्छा, मैं इसके आपकी एग्जांपल भी दूंगी, लेकिन मैं साथ में आपको, हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे पर्सुएसिव और आर्गुमेंटेटिव की, तो वो और आपको क्लियर हो जाएगा। बट आई विल गिव यू द एग्जांपल आल्सो, डोंट वरी। ओके, टेक्निक्स क्या है? ओके, combine facts with emotions to convince the reader that the author is right। अभी तो आप बोलेंगे मिस आपने तो बोला था फैक्ट्स है, होते ही नहीं है इसके अंदर। ऐसी बात नहीं है, फैक्ट्स देते हैं लेकिन वो अपनी मर्जी वाले लेते हैं, वो चीज लेते हैं जो उनको पता है। अब जैसे लेट्स सपोज नेस्वीटा का एड है, अच्छा ये मैं आप लोगों को छोटी छोटी अप्रोच की एग्जांपल दे रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि भाई ये तो एडवर्टाइजमेंट है, हमें मार्केटिंग लेकिन मार्केटिंग में परसुएशन इस्तेमाल होती है। दैट इज व्हाई आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग। अब उसी को ही अगर आप लिख दें पूरे ब्रोशर में, पूरे एक एसे में, पूरे एक एक टेक्स्ट की फॉर्म में, तो इट विल बी हैविंग द सेम काइंड ऑफ अप्रोच। तो अगर फैक्ट्स भी हैं तो उसके अंदर ये वाली टून होती है, देखा मतलब व्हाट डिड आई से, and it has been claimed by different people and the people believed it and many researchers performed this। तो ये वाली चीज जो होती है ना, इसमें हमारी persuasive text के अंदर आती है। to convince the reader that the author is right, emotion based होगी, ignores counter claims, we don't welcome the counter claim। let's suppose if I say that teaching biology should be a compulsory, या studying biology is a must thing should be a must thing in matriculation, let's suppose। ठीक है, अब ये एक आर्ग्यूमेंट है। अच्छा 1 मिनट रह गया है, अब आई नीड टू रीस्टार्ट द मीटिंग, ठीक है।